welcome once again to Times Now and to Frankly Speaking. It's a pleasure to meet you and also at a very important time. बहुत ही महत्वपूर्ण समय है इलेक्शन के पहले और कई लोग कह रहे हैं that the BJP has lost the election even before it has started. That there is no clear issue at hand. In 2004 you had at least two set issues. There was the foreigner issue on Sonia Gandhi and there was the India shining issue. This time the BJP BJP seems to be floundering. That was not an issue at all. That was not an issue at all. This time there are issues and very important issues are there. In election, particularly in this election, country will have to decide whether we want to support vote bank politics or development politics. The youth of the country is very, very eager to see the development politics. And I'm sure this is the agenda. The second agenda, who should lead this country? Whether Dr. Manmohan Singh ji or Advani ji. And there is it's a good opportunity. I must thankful to the Congress party that they at least came out with the name of Dr. Manmohan Singh ji. Right. So now country can take the decision that who is the able person who can lead this country. And country is facing so many crises. Country require a very strong leader, a decisive government. And these are the issues. That's the track record of governance that Dr. Manmohan Singh brings to the table. Advani has challenged him to a television debate. If good orators were to be good prime ministers or the natural bed for prime ministers, then Mr. Vajpayee would not have been in the opposition for so many years. Debate has nothing to do with the oratory. Debate is simply you'll have to sit in the one studio and you'll have to talk frankly. It's not you have to address a 1 lakh rally. And Advani is not asking him for the public rally. It's simply a debate. Some 10-15 cameramen will be there, nothing else. So you want that debate to happen? This is the best suggestion made by Advani ji. But what is that? A country like India will have to reach to the people. Let both the leaders should come on the one dais and they must debate and let the country should listen. Tell me, Modi ji, is it not a democratic way? And this, in this era of the electronic media, this is the best way to reach to the people. No, but it's not you don't become prime minister on the basis of what you say or the strength of your language or your oratory. Dr. Manmohan Singh has a record of quiet competence as an able administrator. The same virtues which you push, country does not, which you want to be recognized. Country does not feel so because this UPA government, they were thinking about the rural electricity program. They fixed some targets. They achieved only 19%. From their target, they could not. They were targeting a 4% agriculture growth. They could not. They stopped at 2.5% agriculture growth. They were talking about the Aam Aadmi government. But महंगाई जिस प्रकार से बढ़ी है, अटल जी के जमाने में 8 रुपये में ओनियन प्याज मिलता था, आज 16 रुपये में मिलता है। अटल जी के जमाने में 250-270 के बीच में गैस का सिलेंडर मिलता था, आज वो 350-370 में मिलता है। अगर वो एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे तो क्या करते? फॉरेन पॉलिसी देख लीजिए। नेपाल सबसे बड़ा डिजास्टर, माओवादियों का वहां कंट्रोल हो गया। क्या दिया देश को? कैसे हम भरोसा करेंगे? आपका सिंगल पॉइंट एजेंडा क्या है मोदी जी? देखिए 26/11 के बाद ये लगा कि आपका इशू होगा टेररिज्म और उसके बाद दिल्ली के इलेक्शंस हुए, दूसरे इश्यूज हुए और तब लोगों ने मैंडेट दे दिया कि इस पे वो बीजेपी का भरोसा नहीं करते। इट्स नॉट लाइक द पीपल ऑफ द कंट्री वोट फॉर द बीजेपी ऑन द इशू ऑफ फाइटिंग टेररिज्म। आज देश में और दुनिया में आतंकवाद एक अहम इश्यू है और इन दिनों हिंदुस्तान में वो और महत्वपूर्ण हो गया है। और ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्र नीति का मुद्दा है। जब तालिबान पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले में पहुंच रहा है, कराची पर तालिबान का कंट्रोल है, क्लेम किया जाता है, उधर माओवादियों ने कंट्रोल कर लिया हो, उधर बांग्लादेशियों में हुजी कंट्रोल कर रहा हो,
हिंदुस्तान चारों तरफ से घिर रहा हो, तो ऐसे समय आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली स्ट्रांग गवर्नमेंट होना देश के लिए बहुत आवश्यक है। आप मानते हैं मोदी जी कि आज हुजी के ग्रोथ बांग्लादेश में और फॉर द ग्रोथ ऑफ द तालिबान, पीपल डोंट ब्लेम द कांग्रेस पार्टी फॉर इट. इट इज नो लॉन्गर अ पॉलिटिकल सब्जेक्ट. द बीजेपी ट्राइड टू पॉलिटिसाइज इट. मैं कहता हूं ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, मैं कहता हूं ये राष्ट्र नीति का मुद्दा है, देश के आम आदमी सुरक्षा का मुद्दा है. आपके पास धन हो, वैभव हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो, लेकिन आपका नौजवान बेटा शाम को अगर जिंदा घर लौट करके नहीं आएगा, तो आपका रुपया, दौलत, धन, ये क्या किस काम का? ये आम आदमी को सुरक्षा चाहिए. पर मोदी जी यही कहा जाता है कि बीजेपी क्रिएट करती है फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, पहला, और दूसरे आतंकवाद के खिलाफ फाइट को पॉलिटिसाइज करती है. जैसे आईपीएल के बारे में आपने स्टेटमेंट दिया, और आपने पाकिस्तान के साथ जब सबसे ज्यादा विद द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन, यू ऑल्सो मेड अ फ्यू कमेंट्स व्हिच वर पिक्ड अप बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड ही सेड दैट इवन नरेंद्र मोदी is questioning whether this evidence will be available in court. No, the charge. I want you to answer the charge which has been put against you and other top BJP leaders, but principally you, is that you politicize the issue of terrorism. आप इसको पोलिटिसाइज क्यों कहते हैं? क्या भारत के भाग्य का फैसला होने की चर्चा ये राजनीति है कि राष्ट्रनीति है? यह देश सुरक्षित होना चाहिए, ये राजनीति है कि राष्ट्रनीति है? हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान के साथ कोई लड़ाई हो जाती है और लड़ाई में भारत को विजयी होना चाहिए, ये पूरे देश का माहौल बनता है, ये राजनीति है कि राष्ट्रनीति है? ये आप लोगों ने मिक्सअप करके रखा हुआ है. जो लोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं रखते हैं, वो उससे भागने के लिए रास्ते खोज रहे हैं. कोई मुझे बताएं, आप साउथ अफ्रीका में भी चुनाव है और वहां पर क्रिकेट मैच जा रहा है, हिंदुस्तान में चुनाव है, आप सुरक्षा के कारणों से हिंदुस्तान में क्रिकेट न खेला जाए, ऐसा जब निर्णय करते हैं, तब पूरे विश्व में एक संदेश चला जाता है कि भारत सुरक्षित देश नहीं है, भारत असुरक्षित देश है. और अब अगर क्रिकेट के लिए ऐसा करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम 2010 में होने वाली है, दुनिया को हम क्या जवाब देंगे? और इसलिए हमारा ये मुद्दा राष्ट्रनीति का मुद्दा है. हम राजनीति में है, डज नॉट मीन कि हम जो बोले सब राजनीति हो जाती है. यू हैव हैड अ वेरी स्ट्रांग वॉर ऑफ वर्ड्स विद मिस्टर चिदम्बरम over this whole issue of the IPL. Now, in many viewers watching to this show will say, Mr. Modi, that is Mr. Narendra Modi putting a T20 match over the national election? दो चीजें अलग हैं. दो चीजें अलग. So what is more important? Because the dates clash. नेशनल इलेक्शन करने की इस देश की ताकत है, वो कर रहे हैं. मेरा राज्य है, दोनों चीजें करने के लिए सामर्थ्यवान है, और हिंदुस्तान में इन चीजों को एडजस्ट किया जा सकता है. इतना बड़ा देश है, कोई तकलीफ नहीं की. और लॉ एंड ऑर्डर ये राज्य का सब्जेक्ट है. गुजरात कह रहा है वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, कर्नाटक कह रहा है वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, इवन छत्तीसगढ़ कह रहा है वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. कांग्रेस पार्टी had a press conference and they showed a letter of your DGP. आपको जानकारी होगी, वो उन्होंने पुराना लेटर दिखाया जबकि चर्चा चल रही थी डेट की. लेकिन ये बहुत बेईमानी है, और भारत के गृह मंत्री ने ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो मेरा फाइनल लेटर है मेरे डीजीपी का, जिसमें उनको कहा गया है, उसको छुपा दिया जाए. इससे बड़ा देश के साथ घोर अन्याय, और गुजरात के साथ अन्याय करके मजा लेना चाहते हैं. आप व्हाई डू यू ऑलवेज से दिस? आप हमेशा गुजरात के साथ अन्याय वाली बात क्यों कहते हैं? इज दैट, मुझे बताइए, यू से दिस वेरी, अगर एक होम मिनिस्टर है तो डीजीपी की महीने पहले की चिट्ठी दिखाते हैं, लेकिन आखिरी चिट्ठी नहीं दिखाते, तो क्या करना? But why should he have a personal problem with Narendra Modi? Mr. Chidambaram is handling the issue as the Home Minister. मुझे पर्सनल कुछ नहीं, मैं होम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं. मैं भारत के गृह मंत्री से पूछ रहा हूं कि एक राज्य का गृह विभाग की चिट्ठी को आप एक चिट्ठी दिखाएं, दूसरी चिट्ठी क्यों नहीं दिखाएं? एक चिट्ठी भी पूरी न दिखाएं, 2 लाइन क्यों दिखाएं? तो ये देश में अनुचित व्यवहार है. Mr. Modi, people look at you and they look at Mr. Advani to set the agenda. So everything that you say is going to be watched very closely. Every word you utter, every statement you utter. How much have you really spoken of development in the run-up to this election campaign? Because you are going to be the... मेरा अभी महाराष्ट्र की सभाएं हुई है, आप जाके देखिए. मैंने ये कहा कि गुजरात में गांव में 24 घंटे बिजली मिलती है, क्यों महाराष्ट्र में नहीं मिलती है? मैंने जाकर के कहा कि एनडीए की सरकार ने रिवर ग्रिड का प्रोजेक्ट रखा था, देश में उसको बंद कर दिया गया. गुजरात अकेला राज्य है जिसने 20 नदियों को जोड़ने का काम किया, और उसका नतीजा ये है कि आज मेरी साबरमती नदी
जो 10 साल से सूखी पड़ी थी, वहां नर्मदा का पानी बह रहा है। हमारे यहाँ सरस्वती नदी, जिसके अंदर पानी नहीं था, आज उसमें नर्मदा का पानी बह रहा है। आपका ये सारे विषय मैं पब्लिकली बोलता हूं। किसानों की आत्महत्या की जब मैं चर्चा करता हूं, तब मैं लोगों को समझाता हूं कि गुजरात भी कॉटन ग्रोवर स्टेट है, आंध्र भी कॉटन ग्रोवर स्टेट है, महाराष्ट्र भी कॉटन ग्रोवर स्टेट है। क्या कारण है कि आंध्र का किसान आत्महत्या कर रहा है? क्या कारण है महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या कर रहा है? और क्या कारण है कि गुजरात का किसान चीन के बाजार में जाकर के कॉटन बेच रहा है? मिस्टर मोदी, यू आर बीइंग बट यू हैव ऑल्सो सेड, आप ये भी कहा है कि हम जंगल के फूल हैं और वो बागीचे के फूल हैं। दिस वॉज अ रेफरेंस टू राहुल गांधी। मैंने किसी का नाम नहीं दिया, बट इट वॉज अ रेफरेंस टू राहुल गांधी। ये आपके दिमाग के सोच सकते हैं कि मुझे इतना इंपॉर्टेंस किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में मैंने यही कहा है। आई वॉज देयर इन गोवा। यस, गोवा में हमारे कैंडिडेट थे नरेंद्र करके। ही इज ओनली 30 ईयर ओल्ड। मैंने कहा ये नौजवान नहीं है क्या? मैं देश के मीडिया को पूछता हूं, क्या 30 साल का नौजवान नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, इसलिए आप उसको नौजवान मानने को तैयार नहीं? वो झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ इसलिए नहीं मानने को तैयार? मैंने कहा आप बगीचे के फूल को फूल मानोगे और जंगल में पैदा हुआ फूल को फूल नहीं मानोगे? राहुल गांधी के बारे में बोल रहे थे। मैं नहीं, कहीं नाम नहीं लेता भैया। मुझे इतनी फुर्सत नहीं साहब किसी परिवार के लिए समय खराब करने की। आप ये कहिए कि वो रेफरेंस जो आपने दी थी वो राहुल गांधी पे भी अप्लाई होती है कि नहीं? वो आप पॉलिटिकल पंडितों का काम है क्या करना क्या नहीं करना। मुझे मेरे 30 साल के नौजवान जो साउथ गोवा के उम्मीदवार हैं, वो 30 साल का जुझारू नौजवान है। ये हिंदुस्तान की जनता के सामने रखना था। ये धरती से निकला हुआ यंग मैन है, झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ यंग मैन है और देश के भविष्य के अंदर राहुल गांधी धरती से निकले हुए नहीं है। मैंने ऐसी कोई चर्चा नहीं की भी। वो आपका एजेंडा हो सकता है। वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम? वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम? मुझे करने के लिए बहुत काम है भाई। मिस्टर मोदी, that is the way you are putting it right now. But the fact is that every possible opportunity, the BJP and you have made this into a personality contest for 2009. देखिए, ये साफ बात है। देश के अंदर कौन प्रधानमंत्री हो ये मुद्दा है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी को प्रस्तुत किया है। एनडीए ने इंक्लूडिंग बीजेपी के नेतृत्व में अडवाणी जी को प्रस्तुत किया है। और यूपीए का मजा देखिए, कांग्रेस तो कहती है कि उनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार मनमोहन सिंह जी हैं, लेकिन यूपीए के पार्टनर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यूपीए में 4 प्रधानमंत्रियों की चर्चा चल रही है। क्यों में खड़े हैं? लालू जी भी चाहते हैं, शरद पवार भी चाहते हैं, रामविलास पासवान भी चाहते हैं। एनडीए ऐसा गठबंधन है कि जहां पर एक ही नेता प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो देश के सामने बात स्पष्ट हो जाती है। पर्सनलाइज्ड कैंपेन से बीजेपी को फायदा कैसे होगा? When you are saying that the issue is development, but at every opportunity, I am asking you this question again and again, Mr. Modi, because at the end of the day, ऐसा लग रहा है कि in this election, and tell me if my analysis is right or wrong, this election it's Mr. Advani versus Manmohan Singh. In the next election, it's going to be Narendra Modi versus possibly Rahul Gandhi. I don't think I am asking you a straight question. That's मैं नहीं मानता हूं कि जो आप नाम दे रहे हैं वो गुजरात का चुनाव लड़ने के लिए आएंगे। I don't think वो गुजरात का चुनाव लड़ने के लिए क्यों आएंगे? 2014 में आप गुजरात का चुनाव लड़ेंगे कि नेशनल चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरी पार्टी ने अगर मुझे टिकट दिया तो मैं गुजरात का चुनाव लड़ूंगा। और मेरी पार्टी मुझे कहे कि संगठन का काम करो तो मैं संगठन का काम करूंगा। मेरी पार्टी कहेगी जाओ केरल के अंदर पार्टी को बढ़ाना है तो वहां केरल चला जाऊंगा। आपको हर वक्त यही कहा जा रहा है, और वो वाइब्रेंट गुजरात समिट में कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने यह भी कहा दैट ही इज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। मिस्टर अंबानी सेड इट, मिस्टर सुनील भारती मित्तल सेड इट। You never came out and said no, that I am not. Obviously there is a national ambition. मैंने 50 बार कहा है कि एनडीए के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। आज देश के सभी नेताओं में सबसे शक्तिशाली अगर कोई नेता है तो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। हिंदुस्तान के सभी राज्यों में जाने की फुर्सत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को नहीं है। आडवाणी जी देश के वो नेता हैं जो 400 से ज्यादा इस देश के जिलों में रात गुजार चुके धरती के नेता, धरती को जानने वाले नेता हैं। और इसलिए ऐसा व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री के लिए सर्वाधिक योग्य है। और आज सब संकटों से घिरा हुआ देश है, तब एक अनुभवी नेता की बहुत जरूरत है। ये मैं हजारों बार बोल चुका हूं।
17th May के बाद, that is up to the 16th of May, when the election results come in. I'm asking you this because, Mr. Modi, within the BJP, you are aware that there have been all these internal fights, there is bickering. There is a feeling that you are the first among equals after Mr. L.K. Advani to be positioned by the BJP as a strong leader at the national level. You are aware of this. You are avoiding the question. मुझे इस बात का गर्व है, मुझे संतोष है कि मैं टीम अडवाणी का सदस्य हूं, और मुझे इस बात का भी आनंद है कि मेरे अनेक साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके अडवाणी जी के नेतृत्व में कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मेरी ट्रेनिंग हुई है, मुझे नए नए दायित्व मिले हैं, और उसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का मुझे अवसर मिला है, और जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिए हैं। ये मेरे लिए गौरव की बात है। Softened also your attack on सोनिया गांधी। और पहले, आज से 4 या 5 साल पहले, पिछले जनरल इलेक्शन के पहले, आप और जो बड़े दिग्गज बीजेपी के नेता थे और दूसरे नेता थे, नॉन कांग्रेसी, you used to target Sonia Gandhi very much, and the whole issue of her leadership. Can this country not produce a person born in India to be a leader of India? Do you believe, Mr. Modi, that with Sonia Gandhi declaring, and she said it at the Congress manifesto release also, कि I am not, she said it very clearly that I am not, that she has gained some stature. इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने या राष्ट्रवादी शक्तियों ने जो एजेंडा उठाया था वो सही था, जो बाद में कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ा। ये तो सफलता की निशानी है। No, but that she has gained in stature. ये सफलता की निशानी है। सफलता फॉर व्हाट? भारतीय जनता पार्टी और इस देश के राष्ट्रवादी विचार के लोगों ने जिस इश्यू को उठाया था, उस इश्यू को आखिरकार कांग्रेस ने भी स्वीकार किया। कांग्रेस ने माना, हाँ यार ये नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने चेंज किया। तो ये तो सफलता की बात है। Mayawati stopped Varun Gandhi this week. A big event. She stopped. She implemented the National Security Act against him. I want to know what is your understanding और आपका क्या व्यू है इस पर कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को वरुण गांधी के खिलाफ अप्लाई किया गया। अब ये सब जुडिस मैटर है, मामला कोर्ट में है, और मुझे भरोसा है कोर्ट उचित न्याय करेगा। बट यू हैव अवॉइडेड एनी कमेंट ऑन वरुण गांधी। व्हाई इज मैं कह रहा हूं ना, मैं कह ही रहा हूं ना, मैं यही तो कह रहा हूं कि ये एक सब जुडिस मैटर है, कोर्ट का मामला है और कोर्ट फैसला करेगी। Mr. Modi, I have a broader question for you. Every pamphlet that is put out by the Gujarat government, every time your achievements of the Gujarat government are put forth, and in several interviews that we have had over the last 3 to 4 years, you have spoken of inclusive governance. Governance that does not exclude the minority community, in fact takes it along at every step. Mr. Modi, however, there are some who believe that Mr. Narendra Modi's governance is inclusive, but his politics is not. I want you to clarify that position. इस देश में नरेंद्र मोदी पहला राजनेता है, पहला, यू नोट डाउन, जिसने हमेशा ये कहा, पहले मैं कहता था 5 करोड़ गुजराती, क्योंकि उस समय मेरे 5 करोड़ जनसंख्या थी, और बाद में मैंने कहना शुरू किया 5.5 करोड़ गुजराती, क्योंकि मेरी जनसंख्या 5.5 करोड़ है। बाकी देश के सारे राजनेता या तो जाति पर बोलते हैं या संप्रदाय पर। इस देश का दुर्भाग्य है कि लाल किले पर से भी प्रधानमंत्री जब भाषण करते हैं तब उन्होंने सिंपल बोलना चाहिए कि मेरे देशवासियों, ऐसा नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब ये आप एकता की भाषा बोलते हैं कि आपकी राजनीति की भाषा बोलते हैं? अकेला मैं एक अपवाद हूं इस देश में जिसने एक इंक्लूसिव भाषा का प्रयोग किया। मैं किसी चीज में जाति धर्म आधार पर सरकार चलाने के पक्षकार नहीं हूं, और हिंदुस्तान ने सिद्ध कर दिया है। और आपकी टीवी चैनल को तो मैं आग्रह करता हूं कि आपकी कोई अच्छी एक्सपर्ट स्टडी करने वाली टीम को बिठाइए। और कांग्रेस पार्टी ने जिस सच्चर कमेटी को बैठाया था, उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में गुजरात की तुलना क्या की है, वो कांग्रेस की कमेटी है, उसको देख लीजिए कि गुजरात में किस प्रकार से सबके भलाई के लिए काम होता है। और हमारा तो मंत्र है, मेरी पार्टी का मंत्र है, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। न्याय सबका होना चाहिए, खुशामद किसी की नहीं होनी चाहिए, तभी तो देश चलेगा। हम टुकड़ों में देश को बांटेंगे तो इससे बड़ा देश का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग सबसे बड़ी मुख्य मीटिंग रहती है,
सभी चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री बैठे हैं, ऑल आईएएस आईपीएस अफसर बैठे हैं, और उसमें देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि हिंदुस्तान की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमान का है। अच्छा होता देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा होता कि हिंदुस्तान की संपत्ति पर पहला अधिकार गरीबों का होता है, और जब गरीबों का कहे कोई संप्रदाय नहीं, उसमें गलत, यही तो इंक्लूसिव है। उसमें गलत है, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात कह रहे हैं कि इफ अ कम्युनिटी इज लेफ्ट बिहाइंड यू गिव इट स्पेशल ट्रीटमेंट। आपको क्यों कारण उनकी पक्ष में आपको बोलना पड़ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री का ये कहने के बजाय वो कह सकते थे कि भाई देश की संपत्ति पर पहला अधिकार गरीबों का है। हम हैं जो कहते हैं कि देश की संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार दरिद्र नारायण का होना चाहिए, गरीब का होना चाहिए। महात्मा गांधी भी वही कह के गए हैं कि समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोग हैं, उनकी भलाई का काम करना चाहिए। मेरे गुजरात के अंदर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का मैंने एक अभियान चलाया। मेरे यहाँ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में कुछ कमियां मुझे महसूस हुई, और आज 100% लड़कियों को स्कूल में ले जा रहा हूं, 100% अचीवमेंट किया है। ये कौन बच्चियां हैं? क्या ये इंक्लूसिव नहीं है? मैं ज्योति ग्राम योजना के अंतर 2400 घंटों बिजली गांव में देता हूं, क्या ये इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है? मैं हर गांव को पीने का पानी देता हूं, क्या इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है? मैं ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी। देखिए, अभी कांग्रेस के यूपीए सरकार ने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देंगे ऐसा मैनिफेस्टो दिया, लेकिन गुजरात इज ए स्टेट जिसने हिंदुस्तान में पहली बार, पूरे एशिया में नहीं दुनिया के अंदर, वी आर द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड जिसने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी रूरल एरिया को दी, और गांव की स्कूलों को लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन से मैं पढ़ा रहा हूं। ये सबके भले के लिए हो रहा है, सबके विकास के लिए हो रहा है।